Hello everyone. Today is our video 3 based on SQL queries. In this video, we will study about the select where statement, operators, limit clause, order by clause, between, like and alike, in, etc. So, let's start the today's lecture. तो सबसे पहले हम देखते हैं select where clause. हमारा where statement जो है it allows us to specify conditions on columns for the rows to be written. हम where clause की हेल्प से कुछ conditions अप्लाई करते हैं. हमारा जो रिजल्ट है based on that condition will be executed. It allows us to specify certain conditions on columns for the rows to be returned. What will be the basic syntax for the select where is select column 1, comma, column 2 from table where conditions. Okay. हम where यूज कब करते हैं? where एकदम from के बाद ही लगाते हैं अपनी SQL स्टेटमेंट में. Basically these conditions are used to filter the rows. और ये जो कंडीशंस होती हैं इसके लिए हमारे लिए दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं. नंबर 1 इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नंबर 2 इज लॉजिकल ऑपरेटर्स. So first we will study about the comparison operators and then logical operators, and we will proceed with the select where SQL queries. So when we use comparison operators, we use comparison operators when we want to compare column value. For example, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें एक कॉलम है मार्क्स. उसके अंदर मार्क्स आपके लाई करते हैं 0 से 100 की रेंज में, लेकिन आपको सिर्फ वही वाले मार्क्स और उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका मार्क्स इक्वल टू हो 90. तो देन वी विल यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आपके बेसिकली ये 6 टाइप्स आते हैं: इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. और हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कब यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हम तब यूज करते हैं जब हम अपने एक की से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंबाइन करना चाहते हैं. टू कंबाइन मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इसके अंदर आपके 3 होते हैं. नंबर 1 इज एंड, or, and, not. Let's take an example. Suppose we have this table, student info table. If I want to display all the students, then I will write simply select star from student info. But if I want to display the rows where the course equal to CS, then what will I write? I will write select star from student info where course equal to CS. So it will give me these two rows as an output. बट जैसे यहाँ पे अभी हमने सिर्फ कोर्स लिखा कि स्टूडेंट कोर्स सीएस में एनरोल है, वो वाला डेटा डिस्प्ले करा दो. बट अब मुझे कोर्स सीएस में भी एनरोल है और उसकी सिटी दिल्ली है, वो वाला डेटा चाहिए. तो देन व्हाट विल राइट? I will simply write select star from student info where course equal to CS and city equal to Delhi. Then only this row will be the output for this statement. I hope you clearly understand the select where statement. So now we will proceed with order by clause. We will use ordered by when we want to sort rows based on a column values, either in ascending order or descending order. It is used to sort rows based on a column value. Syntax for the ordered by clause is select column 1, comma column 2 from table
ordered by, specify the column name, like here I want column 1, or the order, ascending or descending. और अगर आप कोई भी ऑर्डर डिफाइन नहीं करोगे एएसटी और डीएसटी, बाय डिफॉल्ट ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। और जो ये हमारा ऑर्डर्ड बाय क्लोज होता है, इसको हम मोस्टली एट द एंड ऑफ द क्वेरी यूज करते हैं, क्योंकि हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जो हम अपना डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं, वो हम एट द एंड ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन के बाद करते हैं, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि अब हमारे पास ये है एक एम्प्लॉय टेबल हैविंग टू कॉलम्स, एम्प्लॉय एंड सैलरी. I want to display the employee table in the order of increasing salary. So I will simply write select staff from employee order by salary. So what will be the output of this statement? It will give me this table as the first row as this, second as Urvi, and third as Akash. So this is the order by clause. Now we will study next clause, that is limit clause. Okay, so now we will move on to limit clause कि हम अपने ये लिमिट कमांड का यूज कब करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हमारा एक लार्ज डेटाबेस होता है, उसमें हमारी नंबर ऑफ रोज मोर देन 1000 और लैक्स में हो सकती हैं। बट अगर हमें कुछ, हम चाहते हैं कि एक बारी में हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज ही मिले, तब हम अपने लिमिट क्लोज का यूज करते हैं। इट allows us to limit the number of rows. Okay, for example, जैसे आपने, हमारे पास ऊपर एक टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल है ना, उसमें हमारे थे दो चीजें थी, एक तो नेम और एक सैलरी। अब हम मानते हैं उस वाले डेटाबेस में हमारी रोज नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारी थाउजेंड ऑफ रोज हैं और सबकी सैलरी सैलरी अलग है, तो हम लिमिट क्लोज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर खाली 100 चाहिए, तो मैं आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, जैसे हमने ऊपर यूज किया था ऑर्डर बाय सैलरी कर रहे थे हम, तो मैं ऑर्डर बाय के साथ अपना लिमिट को यूज करना चाहती हूँ, तो आई विल राइट ऑर्डर बाय सैलरी लिमिट 100। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारी, ये वाली क्वेरी मुझे इस डेटाबेस की टॉप 100 पूरा सॉर्ट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की टॉप की 100 रोज रिजल्ट में दे देगी। सो दिस इज द लिमिट कमांड व्हेन वी only want the definite number of rows. So next is between operator. हम बिटवीन ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब हमें अपनी वैल्यू को मैच करना होता है बिटवीन अ रेंज। जैसे कि हमें एक रेंज गिवन है फ्रॉम लो टू हाई, और हमें उस रेंज के अंदर अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लाइक आपका एक डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट का नेम है और डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है। अब आपके यहाँ पे नेम होंगे, जैसे ए बी सी, आपको बहुत सारा डेटा है, हमने मान लिया, ठीक है। सबकी डेट ऑफ एडमिशन अलग होगी। लाइक यहाँ पे अभी 2000, किसी ने 2019 में लिया होगा, किसी ने 2020 में लिया होगा, लाइक किसी ने 2015 में लिया होगा। तो ये आपके ऐसा एक डेटा है, यहाँ पे आपकी डेट्स भी हैं इसके आगे। तो अगर मुझे ये चाहिए कि 2019 में किन किन बच्चों ने एडमिशन लिया, तो मेरा बिटवीन ऑपरेटर यूज होगा। ओके, सो आई विल राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डेट ऑफ एडमिशन बिटवीन लाइक 2019 0101 and 2019 1231। ओके,
तो हमारा ये बिटवीन ऑपरेटर क्या हुआ, यूज्ड टू मैच अ वैल्यू अगेंस्ट अ रेंज ऑफ वैल्यूज। तो ये हमारा है वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई। जो ये आपका बिटवीन ऑपरेटर होता है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये हम आपका इसके इक्वल होता है। लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड वैल्यू लेस देन इक्वल टू हाई। ऐसे ही एक हमारा ऑपरेटर होता है नॉट बिटवीन, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो उसमें कौन सी वैल्यू कवर होती है, हमारी हमारी वैल्यू कवर होती है उसमें वैल्यू लेस देन लो और वैल्यू ग्रेटर देन हाई। ये हमारा नॉट बिटवीन ऑपरेटर के केस में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिटवीन एंड नॉट बिटवीन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज इन ऑपरेटर। तो हम इन ऑपरेटर कब यूज करते हैं? अब जैसे देखो, बेसिकली हम इन ऑपरेटर तब यूज करते हैं जब हम अपनी पर्टिकुलर वैल्यू को काफी सारी कंडीशन से चेक करना चाहते हैं। लाइक आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, उसमें उनका नेम है और उनके फेवरेट कलर, कोरस्पॉन्डिंग फेवरेट कलर क्या है वो है। ठीक है, तो हमारे कलर में आपको पता है क्या क्या आ सकता है, रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड सो ऑन। ओके, तो अब मुझे वो वाला डेटा चाहिए, लाइक कि जहाँ पे कलर की वैल्यू रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, खाली ये तीन ऑप्शंस में से मुझे वैल्यू देनी है। तो इस केस में हम अपना इन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है आपका जनरली वैल्यू इन ऑप्शन वन, ऑप्शन टू and so many option as many you want to give. For example, I will write select favorite color from student where favorite color in red, comma, blue, etc. Okay, so this is the concept of in operator. ओके, जो अभी तक हमने देख लिया कि जैसे कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग मैच करनी हो, लाइक आई विल सिंपली राइट वेयर नेम इक्वल टू like Priyanka, I want to match this string. So I will simply use the where operator. But in some cases, I want to use a certain pattern. Like I want to display the name who which ends with the letter A. So in this case, we will use the like operator. So like is used to match against a general pattern in a string. तो लाइक ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमारे पास दो कैरेक्टर होते हैं, नंबर वन इज परसेंटेज एंड सेकेंड वन इज अंडरस्कोर. सो वी विल यूज द परसेंटेज when we want to matches any sequence of character, and we will use the underscore when we want to match only single character, any single character. लाइक इसमें अब हमें वो वाले नेम चाहिए थे जो ए से एंड हो रहे हो, तो we will write where name like percent a. Okay, so it will give me all the names ending with letter a, like Priyanka, Akshita and so on. अब जैसे आपने देखा कि अब मैंने जैसे यहाँ पे परसेंटेज ए यूज करा है, तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे वही वाले नेम देगी जो स्मॉल लेटर ए से खत्म हो रहे होंगे। अगर मेरा टेबल में नेम ऐसे होता प्रियंका, तो इट विल नॉट गिव मी दिस एज एन आउटपुट, बिकॉज लाइक ऑपरेटर इज केस सेंसिटिव। अगर आपको चाहिए कि आप कुछ भी लिखे, चाहे परसेंटेज ए लिखे या फिर कैपिटल ए लिखे, तो इस ऑपरेटर के इस लाइक ऑपरेटर की जगह आप एक और ऑपरेटर होता है हमारा आई लाइक ऑपरेटर, ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, दिस इज केस इनसेंसिटिव. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट select name from
student where name like underscore HGR percentage. So it will give me the output names like Cherry, Shreya, etc. This means before HER there will be only one character, and after HER there can be any number of characters. Okay, so this is it for today's video. I hope you are able to clearly understand the more SQL queries, and if you have any doubt, please comment down below. And I hope you all like this video. So please give thumbs up and subscribe to our channel. Thank you.